Hello, very good morning children. You're most welcome in class 11th accountancy on the topic of depreciation. How the depreciation is calculated on a straight line method and the machinery account is prepared for some years on the sale of the machinery, whether some machinery are being out of use, sold, how the profit is calculated, how the loss is calculated, with the practical question of your question number 6. This one is the question paper of 2016 KBS. How the account is prepared for the machinery account. Now the question, first go through the time, the date and time is very important on reading the questions when the machinery is purchased and when it is sold. Remember, so going through the short information at the blackboard that is given in your book, you can read the information. Means a company purchased a machinery on 1st April 2009 for rupees 80,000. This one is the first machine purchased by the company on April 1st 2009. Then on 1st October 2010 another machine was purchased for rupees 50,000. Means two machines are being purchased. Remember, and the date of the particular machine, first machine on 1st April 2009 and second one on 1st October 2010. And next procedure, this one is the information given in the question, my dear. 1st October 2011, the first machine was purchased on 1st April 2009, become out of use, and it was sold for rupees 23,000. Prepare machinery account for 4 years and rate of depreciation 20% per annum on original cost. That will be charged. Have you got it? Now again try to understand the question in Hindi. एक कंपनी है बेटा जो एक मशीन खरीद रही है, किसी भी तरह की कंपनी है जो अपना प्रोडक्शन करती है, एक मशीनरी खरीद रही है 1 अप्रैल 2009 को कितने में? 80,000 रुपए। फिर एक दूसरी मशीन 1 अक्टूबर 2010 को ये 50,000 रुपए में खरीद रही है, और फिर 1 अक्टूबर 2011 को नेक्स्ट ईयर ये क्या कर रही है कि उस मशीन को, जो पहली मशीन है, उसे 23,000 रुपए में बेच देगा और बेच दे रही है। और ये कंपनी, ये कहा जा रहा है कि आप 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाइए और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट, मतलब इंस्टॉलमेंट सिस्टम, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम है जिस पर 20% पर एनम और मशीन 4 साल का आपको बनाना। तो सर्वप्रथम हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मशीन का पर एनम 80,000, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 80,000 into 20/100
000 मीन्स फर्स्ट मशीन का 16,000, सेकेंड मशीन की फर्स्ट मशीन का है पर एनम, जस्ट per annum the depreciation will be charged on machine the first 16,000 and then for the second machine 50,000 into 20 upon 100 10,000 है, ये सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन। This has been calculated. I want to say the एक साल का डेप्रिसिएशन पहली मशीन का 16,000 होगा और दूसरी मशीन का 10,000। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। आप लिखेंगे ऐसे, देखिए कॉलम बनाएंगे आप, वो थोड़ा सा जगह मैं छोड़ रहा हूँ, प्लेस फॉर द वर्किंग नोट्स। This way, just draw the column, date, particular amount. This one is the column of amount and date. Later folio column also drawn. So journal column, JF. Ledger account, this one is. So on top of the machinery account, date, particular amount, date in credit side, particular amount. This one is the debit and this one is the credit. So now go through the questions, whatever the information given on 1st April 2009. April 1st 2009. Just you can write 2009. April 1st. The first machine purchased. Machinery account debit to bank account. What comes in debit? तो मशीनरी अकाउंट खोल रहे हैं तो मशीनरी डेबिट है, किस रूप में? कैश के रूप में। टू बैंक फर्स्ट मशीन, जस्ट यू कैन गिव दिस वन इंडिकेशन, फर्स्ट मशीन ₹80,000। अब बेटा साल का एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज ऑफ दैट जस्ट द अकाउंटिंग पीरियड इज अप्रैल टू मार्च, तो 2009 से यदि हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो 2010 मार्च तक जाएगा। तो यहाँ पर 31/3/2010 बाय डेप्रिसिएशन बिल भी चार्ज, मशीन चल गई और हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया बाय डेप्रिसिएशन। By depreciation 16,000 first year. So अब जो value at the end of the year, the value of the machine will be from 80,000, 16,000 will be deducted. That will be the balance. So you can write by balance. By balance CD. So 64,000. Just you can do this way.
80,000 and this will be the 80,000. Again, the next year will begin on 1st April 2010. So here you can write 1, 4, 10. 1, 4, 10. 2 balance BD. 2 balance BD. Just 64,000. अब हमारी फर्स्ट मशीन का वैल्यू दूसरे साल में 64,000 रुपए हो गया। अब फिर हम एक मशीन और खरीद रहे हैं 2010 में अक्टूबर। अक्टूबर इज द मंथ ऑफ 10, 11, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर को हम मशीन खरीद रहे हैं। तो कौन सा महीना होता है? वो साल का कौन सा महीना होता है? नवंबर 11वां, दिसंबर 12वां, तो अक्टूबर क्या होगा? 10वां। अब यहाँ पर 1, 10 and 10 2 गए। सेकेंड मशीन आपने खरीद लिया 50,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब 31 मार्च को हमारा साल होगा 31/3/11 बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का तो पूरा साल चल रही है, आपका कितना हो गया? 16,000। अब यहाँ पर सेकेंड मशीन का देखेंगे बेटा थोड़ा सा। सेकेंड मशीन का एक साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है और हमारा असेसमेंट ईयर जो है अप्रैल से मार्च है। 1 अक्टूबर को खरीद रहे हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर 6 महीने नहीं, तो हमारा 6 महीने चलेगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक। तो उस पर डेप्रिसिएशन जिस साल वो मशीन खरीदी गई है, इन विच ईयर इट हैज बीन परचेज्ड, जस्ट द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। सो एक साल का 10,000 है तो 6 महीने का 5,000 होगा। 5 just this way you can do it. 16/5 21,000 होगा डेप्रिसिएशन एंड 31/3/11 को बाई बैलेंस। अब ये टोटल कर दिया हमने 50 और 64,000 मिलकर के दोनों मशीन की कीमत 6,511 1,14,000। ठीक है बेटा, 1,14,000 में से 1,21,000 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,14,000। 3 0 ये हो गया, 3 4 और 9 93,000। दोनों मशीन का वैल्यू जो होगा 2011 में आकर के 93,000 हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। इन थर्ड ईयर 1, 4, 11 2 बैलेंस। Just 93। अब इंफॉर्मेशन 1 अक्टूबर 2011 को फर्स्ट मशीन जो 80,000 में हमने खरीदा था उसे हमने क्या कर दिया? बेच दिया।
23,000 रुपए में बेच दिया। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, आपका पैसा आ रहा है, एक 1 अक्टूबर है, ये 10/11 बाय बैंक, सीधे लिखेंगे कितना पैसा बाय बैंक, कितना 23,000। अब ये देखिएगा बेटा, तीसरे साल में हमारी जो पहली मशीन जिसको मैं बेच रहा हूं वो हमारी क्या कर रही है, 6 महीने चल के बिक रही है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो उसका चार्ज होगा ही। 1/10/11 को आपका हो गया बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन कितना हो गया, एक साल का 16,000 है, तो 6 महीने का 8,000। अब इस मशीन पर हमें लाभ हुआ कि हानि, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। मशीन की कीमत 80,000 है और उसका जो वैल्यू हमने घटाया है वो कितना है, पहले साल डेप्रिसिएशन 16,000 लगाया, दूसरे साल में 16,000 लगा है और तीसरे साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा है, तो 8,000। तो 16, 16, 32 और 8, 40,000 रुपए वैल्यू कम हो गया मशीन का। मशीन कितने की थी, 80,000। कास्ट ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन द डेट ऑफ सेलिंग इक्वल टू कास्ट ऑफ द मशीन माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज, 80,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 40,000। मतलब बेचते वक्त ऑन द टाइम ऑफ सेलिंग द वैल्यू ऑफ द मशीन इज 40,000। ध्यान दीजिएगा, बेचते समय हमारे मशीन की कीमत 40,000 और इसके बाद हम इसे कितने में बेच रहे हैं, 23,000 में। तो हमें ये बताइए, हम आज 40,000 की वस्तु को यदि उससे कम में बेचेंगे तो हमारा लॉस होगा, यदि उससे अधिक में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो कितने का, कितने में बेचे हैं हम, 23,000 माइनस 23,000 इक्वल टू 0, 0, 0, 10 17,000 का हमको लॉस हो गया, 17,000 का नुकसान हुआ। उस समय हमारे मशीन की बुक वैल्यू 40,000 थी और हमने 23,000 में बेच दिया, तो 17,000 का हमें नुकसान हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बाय पीएल स्टेटमेंट। कंपनी वाले केस में स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 17, 17। क्लियर, ये इस तरह से लिख देंगे। अब दूसरी मशीन हमारी चली रही है, अब साल के अंत में हम लिखेंगे 31/3 हमारा साल अंत होगा। दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड मशीन का, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन, ये पूरा साल चल रही है, 10,000 रुपए है, हम यहाँ पर लिखेंगे 10। अब ये पूरा टोटल डेबिट कॉलम से माइनस कर देंगे बेटा, यहाँ देखिए 93,000 ऐसे करके आपने टोटल कर दिया और यहाँ पर बैलेंस के लिए आपने रखा 93,000। टोटल इसका 40, 48, 17, 23, 40, 8, 48 और 10, 58, 93,000 में से 58,000 माइनस कर देंगे,
1000 माइनस 58,000। वर्किंग नोट के लिए है 0 0 0, 13 में से 8 गया 5, 8 में से 5 गया 3, 45,000। बाई बैलेंस CD 35,000। अब आपको 1 साल 2 साल 3 साल चौथे साल का बना लीजिए। फिर वही चीज 1 4 12, 1 4 12 को टू बैलेंस BD 35,000 है आपका। अब इसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 31 3 12 को 31 3 13 को आप बाय डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 10,000, क्योंकि पहली मशीन बिक गई है, ये दूसरी मशीन चल रही है। अब इसके बाद आप बैलेंस कर लें। बाय बैलेंस 45,000, डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस हो गया, आपका आ गया 25। इस तरह से नंबर मशीन में अकाउंट बनाया जाती है और चलता रहता है स्ट्रेट लाइन में 35। क्लियर? नाउ द आंसर दैट इज गिवन, बैलेंस 17,000 and 25,000. So my dear children, this way such questions are solved. Again Hindi and English both। ये हमको 1 4 11 11 महीने बाई बैंक जो हमने पता किया, उसके बाद डेप्रिसिएशन उस मशीन का जितने दिन चली चार्ज किया, और उसका वैल्यू जो कास्ट मशीन की थी 80,000, उसमें से 40,000 माइनस किया हमने, तो हमारा वैल्यू 40,000 का हुआ। हमने 23,000 में बेचा तो हमारा 17,000 का नुकसान हुआ। दूसरी मशीन पर हमने पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इस तरह से मशीनरी अकाउंट बनाई जाती है बेटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से प्रैक्टिकल वर्किंग नोट आप दिखाएंगे, हम इसका सलूशन बनाकर भी भेजेंगे। थैंक यू फॉर द डे, एंड दिस वन इज फॉर द सेक ऑफ